the chapter 4, I Love My India. In our previous part, we have learned this chapter, and now we will see the question answer of this chapter. Read and answer. Question A. Tick the correct answer. First, the country with the second largest population in the world is, the options are China, B. India, and C. Russia. The country with the second largest population in the world is India. So we have to take here in front of B. Second, India is surrounded by three options: A. Continents, B. Countries, and C. Water bodies. India is surrounded by three water bodies, namely Arabian Sea, Bay of Bengal, and Indian Ocean. Third one is, the capital of India is A. New Delhi, B. Kolkata, and C. Mumbai. And the correct answer is New Delhi. The capital of India is New Delhi. Then fourth one is, the Chief Minister of Uttar Pradesh lives and works in A. Mumbai, B. Lucknow, and C. New Delhi. And the correct answer is Lucknow. The Chief Minister of Uttar Pradesh lives and works in Lucknow, क्योंकि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का कैपिटल है, और जो कैपिटल है वहीं से उस स्टेट का जो है वर्क किया जाता है. चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टेट में नहीं बल्कि उनकी जो कैपिटल्स होते हैं वहाँ रहते हैं और वहीं से वर्क करते हैं. फिफ्थ वन इज, द यूनियन टेरिटोरीज आर गवर्न बाय द A. सेंट्रल गवर्नमेंट, B. state government, and C. local government. The union territories are governed by the central government. B. Write T for true or F for false. First one is, the Arabian Sea lies to the east of India. Its sentence is false, so we have right here F. The Arabian Sea lies to the west of India. Here this statement is wrong, so we write here F. Then second one is, India has one central government and many state government. One central government and many state government. This sentence is true, so we write here T. Third one is, no person above the age of 18 can vote in India. 18 ईयर्स से ऊपर जो भी है वो वोट नहीं कर सकते हैं. ये सेंटेंस जो है रॉन्ग है, क्योंकि जो 18 ईयर्स से ऊपर है वही सिर्फ वोट कर सकते हैं. तो ये आंसर यहाँ पर फॉल्स लिखना है. देन फोर्थ वन इज, द प्राइम मिनिस्टर लिव्स एंड वर्क इन न्यू दिल्ली. ट्रू, द प्राइम मिनिस्टर लिव्स एंड वर्क इन न्यू दिल्ली, क्योंकि न्यू दिल्ली जो है वो कैपिटल है, तो प्राइम मिनिस्टर कैपिटल में यानी दिल्ली में रहकर के वहाँ से काम करते हैं. देन क्वेश्चन सी, आंसर दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, राइट द नेम ऑफ एनी 5 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. राइट द नेम ऑफ एनी 5 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. द आंसर इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल एंड भूटान. These are 5 neighboring countries of India. You can write any 5. Question second, which are the 2 types of government in our country? There are 2 types of government in our country. Let's see. Answer: central government and the state government. Central government and state government are 2 types of government in India. Third question is, why is our country divided into states? Why is our country divided into states? Answer is, India is so big that it is not possible for a single government to understand and solve the problem of all the people. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिससे कि
एक ही गवर्नमेंट को पूरे जो पीपल्स की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसकी वजह से therefore after independence our country was divided into small parts called states। यानी इतनी बड़ी कंट्री के प्रॉब्लम्स जो है वो एक गवर्नमेंट को सॉल्व करना मुश्किल है। इसकी वजह से इंडिया के छोटे छोटे पार्ट्स किए गए जिसे कि स्टेट कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ आर यूनियन टेरिटोरीज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट? आंसर, यूनियन टेरिटोरीज आर गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटोरीज आर गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर एज स्टेट्स आर गवर्न्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरीज आर गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटोरीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू गवर्न किए जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में मतलब स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का गवर्न रहता है। क्वेश्चन डी, थिंक एंड आंसर। Which government look after the welfare of the people of Chandigarh? Which government looks after the welfare of the people of Chandigarh? The state government or the central government? Give reason for your answer. चंडीगढ़ में कौन सा गवर्नमेंट जो है वो पीपल के लिए, पीपल की भलाई के लिए काम करता है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? गिव रीजन। लेट्स सी। द आंसर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ चंडीगढ़। कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर काम करता है क्योंकि दिस इज बिकॉज चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटोरी। चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटोरी। द यूनियन टेरिटोरीज आर गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द यूनियन टेरिटोरीज आर गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटोरीज जो है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, शासन करती है। Do and learn. Question E, FAD. Write the names of these states in the correct column. Hint C map 4.1 for clues. Look at here. In this box, here are some states name. Some states name, and we have to write these states in which direction are. ये जो states है वो कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया। कौन से डायरेक्शन में ये स्टेट्स है ये हमें लिखना है। सबसे पहले देखते हैं गुजरात। कौन सी डायरेक्शन में है गुजरात? इन विच डायरेक्शन गुजरात लोकेटेड? गुजरात इज लोकेटेड इन वेस्ट इंडिया, सो वी राइट गुजरात हियर अंडर दिस कॉलम वेस्ट India. Then Punjab. Where is Punjab? Punjab is in North India. So we write here Punjab under North India in this column. Then third one is West Bengal. West Bengal कहाँ पर है? कौन सी डायरेक्शन में लोकेटेड है? Here in East India. तो यहाँ पर हमने लिखा है West Bengal. Then Mizoram. मिजोरम भी जो है ईस्ट इंडिया में आता है। ईस्ट इंडिया उसी डायरेक्शन में है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है मिजोरम। देन केरला। केरला कौन सी डायरेक्शन में आता है? केरला आता है साउथ इंडिया में, तो वी राइट हियर केरला। देन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज इन वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया में आता है महाराष्ट्र, सो वी राइट हियर महाराष्ट्र अंडर दिस कॉलम वेस्ट इंडिया। देन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? हिमाचल प्रदेश आ रहा है नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ साइड में आता है, तो हमने हिमाचल प्रदेश यहाँ लिख दिया है नॉर्थ इंडिया के नीचे इस कॉलम में। देन तमिलनाडु। तमिलनाडु कौन सी डायरेक्शन में आता है? साउथ में आता है, तो साउथ इंडिया के इस कॉलम में हमने यहाँ तमिलनाडु लिखना है। देन क्वेश्चन F, प्रोजेक्ट। Divided the class into 3 groups A, B and C. ये जो एक्टिविटी है, ये जो प्रोजेक्ट है, हमें ये स्कूल में करना है। अभी हम स्कूल में तो है नहीं, तो ये हमें घर
एक चार्ट पेपर पर उनके नीचे उनके नाम लिखने हैं। कलेक्ट एंड पेस्ट देयर फोटोग्राफ्स, also write their terms in office, put up all the posters in class. President, Vice President and Prime Minister, उनके क्या करने हैं, फोटोग्राफ निकालने हैं और वो फोटो स्टिक करने हैं, उसके नीचे उनका नाम लिखना है और उन्होंने कौन से ईयर से कौन से ईयर तक उनका काम किया तो वो भी वहाँ पर मेंशन करना है। देन क्वेश्चन जी, मैप वर्क, मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन द मैप of India given on page 127. You can see in your textbook on page number 127 there is a map and you have to label and mark these states. First, the capital of Odisha, Uttar Pradesh, Gujarat, Assam, Kerala and Telangana. आपको क्या करना है, जो ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, केरला और तेलंगाना के जो कैपिटल्स हैं उनको हमें मार्क करना है और लेबल करना है। पेज नंबर 127 पर जो मैप दिया है वहाँ पर ये जो स्टेट्स है उनके कैपिटल हमें मार्क करके वहाँ पर लेबल करना है, यानी उनके नाम लिखने हैं। देन लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पर है वो भी सर्च करके आपको वहाँ पर मार्क करके उनके नेम लिखने हैं, लेबल करना है। देन अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। अरेबियन सी कौन सी डायरेक्शन में है, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन कहाँ पर लोकेटेड है आपको वो सर्च करना है, वहाँ पर मैप पर वो लेबल करना है। देन क्वेश्चन एच, वेब मेल, to attend a quiz on the Indian states visit rsgr.in/bss3.2। इस वेब लिंक पर जाकर आप इंडिया के स्टेट्स के बारे में और जानकारी देख सकते हैं। देन क्वेश्चन आई, वैल्यू, टू लव one's country is called patriotism। Memorize any patriotic song and sing it in class. Also learn the meaning of that song. To love one's country is called patriotism. Patriotism, हम हमारे देश से प्यार करते हैं, इसे क्या कहते हैं, patriotism। तो इसके याद में, यानी हमारे देश के याद में हमें क्या करना है, एक गीत गाना है जो कि ये जताए कि हम हमारे देश से प्यार करते हैं, और वो सॉन्ग आपको क्लास में या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके सामने गाना है और उसका मीनिंग भी बताना है। Here we completed our 4th chapter. You have to write this question answer in your notebook and textbook also in good and clean handwriting, and read this chapter and revise this video again and again. Thank you.